So in last session we discussed about the parallel plate capacitor and the energy stored in it and different concept based on parallel plate capacitor. Okay. Now in today's session we solve some example based on a capacitor, whole concept of the capacitor, whatever we have studied up to this one. Okay. Let's start with the first one. Exercise example number 2.5 from the textbook. A parallel plate capacitor with the air between the plate is what? 8 picofarad. So C is given to us 8 picofarad. When the air is present between this, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced to half? अब मान लो कि ये कैपेसिटर C1 है, तो इसमें डिस्टेंस आप अगर D रखते हो तो फिर C2 क्या होगा? आपने क्या किया? D2 इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब D/2 कर दिया. Okay, suppose initially the capacitance is C1, 8 picofarad. At the time distance between the two plates is what? D. Now distance is reduced to half. So आपको C2 फाइंड करना है. जब D2 हाफ हो जाएगा, so D/2 and the space between them is filled with the substance having a dielectric constant K. तो मतलब एक केस की अगर बात करें तो कुछ ऐसा है केस. देखो यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? D1. ओके इसके बीच का डायरेक्ट कांस्टेंट ले लो 1, क्योंकि एयर है. सो इसमें फर्स्ट केस में क्या था? नाउ इन सेकेंड केस व्हाट हैपन? आपने डिस्टेंस हाफ कर दिया, सो डिस्टेंस आपका हो गया हाफ, ऐसा. ओके सो दस डिस्टेंस इज बिकम्स D2 और आपने यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, कोई मतलब कोई सब्सटेंस यहाँ पे फिल कर दिया, हैविंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6. सो वी हैव टू फाइंड द C2. So what is C1 actually? So C1 is equal to epsilon naught A upon D1. C1 is equal to epsilon naught A upon D1. And what is C2? C2 is equal to epsilon naught A upon D2. But dielectric constant is present, means you multiply with the K. Now you just take the ratio of the C1 upon C2. अब C2 फाइंड करना है तो C2 upon C1 रेशियो ले लो, वो इजी रहेगा. तो C2 upon C1 by टेकिंग रेशियो. सो यहाँ पे रेशियो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल दोनों में से, तो K अपॉन D2 इंटू 1 अपॉन D1 ऐसा रेशियो हो जाएगा. सो D1 एवरीथिंग इज गिवन टू यू. ओके ऑल ऑफ यू जस्ट पुट द वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन एंड फाइंड द C2. सो रिमेनिंग कैलकुलेशन इज इन होमवर्क. चलो नोट कर लो एग्जाम्पल को. Now comes to this next example. Example number 2.8. What is the problem statement? In a parallel plate capacitor with the air between those two plates, each plate having area 6 into 10 raised to minus 3 meter square. So area is equal to 6 into 10 raised to minus 3 meter square. And the distance between the plate is 3 mm. So 3 mm को मीटर में कन्वर्ट कर दो. So 3 into 10 raised to minus 3 meter. So फाइंड करना है what is the capacitance. तो इसमें से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एयर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली इक्वेशन में K नहीं आएगा. ठीक है. सो कैपेसिटेंस is just find by using this equation where you put epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 in SI unit. So all of you just put the value here, you get the answer of capacitance in फैराड. ठीक है. उसके हिसाब से जितना भी आता है माइनस पावर उस पर आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दो. माइक्रोफेराड है, पाइकोफेराड, नैनोफेराड, डिपेंड्स ऑन द आंसर ऑफ दिस वन. ओके नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? if the capacitor is connected to the 100 volt supply battery then what is the charge? तो अगर आपने एक कैपेसिटर को 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया तो फिर चार्ज क्या होगा? सो ये भी सिंपल है. सो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V. C ऑलरेडी नॉन है यहाँ पे ए वैल्यू रख दो, ए वी भी यहाँ पे रख दो, तो आपका जो भी आंसर है वो Q का कूलम में आ जाएगा. ठीक है. सो कैलकुलेशन आप दोनों की होमवर्क में कर लेना. सिंपल इक्वेशन ही है जो आपको यहाँ पे रखना है और सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी. ठीक है. तो पूरा एग्जांपल नोट कर लो. चलो okay now comes to this next example. Example number 2.10 from the textbook exercise. A 12 picofarad capacitor is connected to the 50 volt battery. मतलब capacitance is 12 picofarad and the voltage is what? 50 volt. This type of data are given to us. You convert this value 12 into 10 raised to minus 12 farad.
Okay, pi com is 10 raised to minus 12. Now how much electrostatic energy stored in the capacitor? So you have to find the electrostatic energy. C given है, V given है, तो U का फॉर्मूला आप C और V के टर्म में यहाँ पे राइट करो, ठीक है। सो फिर एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे एनर्जी इज गिवन एज U इज इक्वल टू 1/2 CV²। जो भी टर्म्स है उसके टर्म में आपको वैल्यू रखनी, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, जो भी आंसर आएगा जूल में और आपको कैलकुलेट करना है होमवर्क में, ठीक है। यहाँ पे वर्क एनर्जी स्टोर आपको गिवन है तो आपको ये इक्वेशन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो हम एडिशनल नोट्स पे भी यहाँ पे लिख दो। अगर इसी केस में आपको फाइंड करना है कि हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, एफ फाइंड करना है, तो फिर आपको यूज करना है U इज इक्वल टू ओनली CV², डबल ऑफ दिस वन, एज वी डिराइव दिस रिलेशन इन अ प्रीवियस सेशन। सो CV² मतलब ये वैल्यू रख के आपको वर्क फाइंड करना है, आपका आंसर होगा जूल में, ठीक है। तो ये भी आप एक होमवर्क में एडिशन में नोट कर लेना। वर्क डन बाय बैटरी ऐसा है, EU इतना है, और आपको इसमें हीट चाहिए। एडिशनल नोट्स में आप इसमें ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अगर चार्ज किया है तो, ठीक है। तो फिर कितने हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। सो हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो इसमें भी आप वैल्यू रख के हीट भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क में कर लेना। चलो पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो। Okay guys, comes to this next example number 2.24 from the textbook exercise. What is the area of the plates of two Faraday parallel plate capacitor given that separation is 0.5 centimeter? So the 2 Faraday given, separation 0.5 centimeter given, area find करना है। इसको आप करो तो 0.5 into 10 raised to minus 2 meter. Okay, so use the equation of capacitance of parallel plate. So what is capacitance? सो कैपेसिटेंस आपका होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसमें से A फाइंड करो। सो A इज इक्वल टू C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C और D गिवन एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पे 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 इन SI यूनिट्स। सो यार सभी वैल्यू आप इसमें रख दो, आपका आंसर मिलेगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो आप पहले आप होमवर्क पे कर लेना, और अभी मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आता है 1.13 इंटू 10 रेज़ टू 19 1.13 into 10 raised to 9 meter square. So you just see, if you want to form a capacitor having a capacitance 2 Faraday, then this much of a larger plate is required for us. अगर आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट करते हो तो आंसर आता है 1130 किलोमीटर स्क्वायर, 1130 किलोमीटर स्क्वायर. So this is very larger area and it is not physically possible. So generally whatever the capacitance is used in the regular lives, okay, and this is very smaller in size, that is very larger in size. So generally we are using the microfarad, nanofarad, picofarad capacitance. So Faraday is a very large capacity for the any capacitor. Okay, so note karo example ko. Okay guys, comes to next example number 2.26. The plates of parallel plate capacitor have the area of 90 centimeter. So A is equal to 90 centimeter square, converted into meter square. So 90 into 10 raised to minus 4 meter square, and they separated by 2.5 mm. So D is equal to 2.5 mm, converted into meter. So 2.5 into 10 raised to minus 3 meter. And it is connected to the 400 volt supply. So V is equal to 400 volt. So यहाँ पे दो questions है. First question A, how much electrostatic energy stored into the capacitor? So U is equal to find out. So पहले A पे चलते हैं. So A, energy stored in कैपेसिटर. सो इसका इक्वेशन जो है आपको इस टर्म में लिखना है, मतलब V गिवन है तो V के टर्म में लिखो. सो 1/2 CV², 1/2 नॉन, V नॉन, you just put the value of the C. So 1/2 C is what?
epsilon naught A upon D into V square. See, A given, D given, V given, and epsilon naught is already given 8.85 10 raised to minus 12. So put the all value, you get the answer of this one. Okay, so you get the answer in joule. So remaining calculation is in a homework. आप ये homework में कर लेना जो भी आंसर आता है. Second question है, view this energy stored in the electrostatic field between the plates and obtain the energy per unit volume. So this section, this B, we already discussed during in a previous session. So electrostatic energy per unit volume, we call it is energy density. So energy डेंसिटी अगर आप रो ही लिखते हो यहाँ पे तो इसका आंसर आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. वी ऑलरेडी डिराइव दिस रिलेशन, सो राइट नाउ आई एम जस्ट राइट दिस इक्वेशन डायरेक्टली. ओके, और अब आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने किया था उसमें से यहाँ पे लिख देना. ठीक है, तो पूरा एग्जाम्पल नोट्स कर लो. Okay guys, comes to this next example, example number 2.30 from the additional exercise. So this is not a part of a board theory. Okay, means you just prepare this example for the competitive examination, JEE NEET. Let's we studied about this. Let's we start with this example. A spherical capacitor has the inner space of radius 12 cm and outer sphere radius 13 cm. Means this type of case is given to you. Suppose it is the inner sphere and here it is a outer sphere. Okay, so this inner sphere radius is r1 and outer sphere radius is supposed to be considered r2. So r1 is given to us 12 and 13, so that's a 12 into 10 raised to minus 2 meter. r2 is equal to 13 into 10 raised to minus 2 meter. I'm just convert this value into the meter. So this is the given data. The outer sphere is to be earth, तो यहाँ पे आपने अर्थिंग कर दिया. आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड द इनर स्फीयर इज गिवन सम चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम. मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ चार्ज जो है Q रखा, तो Q कितना हो जाएगा, मतलब Q कितना है 2.5 माइक्रोकूलम. सो 2.5 माइक्रो कन्वर्ट इन अ कूलम, सो 10 raised to minus 6 कूलम. सो यू इफ यू पुट सम चार्ज Q ऑन दिस वन, सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे आया, ओके, सो ऑन द आउटर स्फीयर, on this outer sphere this negative charge is induced. So here this negative charge is induced everywhere on the inner surface. On the inner surface, outer surface is grounded. If outer surface is grounded, means the charge on the outer surface is 0. Charge on the outer surface, here this Q is what, 0. And on this one how much charge, minus Q. हम अलग पेन से यहाँ पे charges लिखते हैं. So how much charge is present on the here, that is a plus Q. On the inner surface, here it is a minus Q, and on the outer surface of the outer shell is what, 0. Why? यहाँ पे grounding है. As we studied in a conductor, if you consider this grounding, then there is a charge is 0. So here this one capacitor is formed. See, plus Q and minus Q. On this one here capacitance is one capacitance is formed. And what is the capacitance of the spherical capacitor? So let's we write this equation as we derive in a first sessions of the capacitor. So capacitance of spherical capacitor is given by C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1. This is the capacitance of a spherical capacitor. Okay, now what we have to find here, the space between these two concentric sphere is filled with a dielectric constant of 32. मतलब इसके बीच की जो भी स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस में आपने कोई डायलेक्ट्रिक लिक्विड फिलअप किया हुआ है, उसका डायलेक्ट्रिक लिक्विड का K कितना है, K इज इक्वल टू 32. So लास्ट सेशन में क्या देखा था, A ओरिजिनल कैपेसिटेंस है when the air is filled between these two. But right now some dielectric liquid is filled here, so this capacitance C is given by, this capacitance C is given by this one, but it is multiplied by K. It is a multiply by K. So capacitance of spherical capacitor यहाँ पे आपको ऐड करना होगा with dielectric. अगर डायलेक्ट्रिक नहीं है तो K निकाल दो, डायलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करो, एज वी स्टडीड इन द लास्ट सेशन. ओके, सो दिस वन. नाउ फर्स्ट डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम ही है.
तो इसमें 4 pi epsilon naught r1 r2 everything is given. So put the all this value here and find this answer, and this answer is in Faraday. Okay, so calculation is in homework. आप कैलकुलेशन सभी वैल्यू रख के इसमें कैलकुलेट कर लेना, होमवर्क में है. सेकेंड प्रॉब्लम, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, मतलब इस पॉइंट का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बी. तो आप अगर बी पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं. देखो यहाँ पे कोई पॉइंट्स ले लो. चलो मान लो इनर स्फीयर पे कोई पॉइंट से ए, इनर स्फीयर पे कौन सा पॉइंट है, तो आपको फाइंड करना है वी ए इज इक्वल टू व्हाट. एक्चुअली व्हाट इज दिस पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर. तो वी ए क्या हो जाएगा, वी इनर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस माइनस चार्ज का पोटेंशियल. सो वी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, ऐसा लिखना होगा. प्लस क्यू से पोटेंशियल एंड माइनस क्यू से पोटेंशियल, दोनों का सम करो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा. तो दोनों की वैल्यू रखो. चलो पोटेंशियल क्या होता है स्फीयर का, के क्यू अपॉन आर. तो प्लस क्यू का आर कितना है r1, तो इसका आंसर होगा के इंटू प्लस क्यू. कैपिटल क्यू यूज किया है तो यहाँ पे भी कैपिटल क्यू यूज करो, कैपिटल क्यू अपॉन उसकी रेडियस कितनी है r1, तो r1. यहाँ पे भी आप कैपिटल क्यू ले लो, यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखा है इसलिए, ओके, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. So that is was first one. Second one, K negative charge minus Q. So minus Q upon radius of the second sphere is what R2. So यहाँ पे रख दो आप R2. टोटल आंसर कितना हो जाएगा, देखो VA is equal to KQ upon R1 plus minus minus KQ upon R2. सभी वैल्यू आपके पास है. K is equal to आप रख दो 9 into 10 raised to 9. यहाँ पे K क्या रखना है, 9 into 10 raised to 9 इन SI यूनिट. ओके, और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या रखना है, 8.85 into 10 raised to minus 12 इन SI यूनिट. अगर ऐसा नहीं रखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/, एक के कैपिटल है स्मॉल है, हाँ, दिस के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कैपिटल के ए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है, और ए जो मैंने के लिखा है यहाँ पे एक है, वो कूलम्स लॉ का के है. सो डोंट बी कंफ्यूज हियर. यहाँ पे दो है, ए स्मॉल के है या कैपिटल के. तो ए जो मैंने के यहाँ पे लिखा हो कैपिटल के है, ठीक है. डायरेक्टली कांस्टेंट यहाँ पे 9 into 10 raised to 9 नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको 9 into 10 raised to 9 रखना है, ठीक है. तो यहाँ पे आप मिस्टेक मत कर देना. ये दैट इज अ स्मॉल के कांस्टेंट एंड दैट इज अ डायरेक्टली कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्टली कांस्टेंट है, ठीक है. तो ये से आपको यहाँ पे सभी वैल्यू रख के फाइंड करना था. सो दैट्स इज इन होमवर्क, आप होमवर्क में कर लेना. एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे सी. व्हाट इज दिस नेक्स्ट वन, 2/30. सो सी कैसा है, कंपेयर द कैपेसिटर्स ऑफ दिस कैपेसिटर विथ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. मगर आपने इसमें एक आइसोलेटेड स्फीयर रखा, चलो ये आइसोलेटेड स्फीयर रखा, इसकी रेडियस कितनी है, मान लो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे आइसोलेटेड स्फीयर रखा तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर आप डायरेक्टली यूज करो, कैपेसिटेंस ऑफ अ sphere. We derived this relation in a previous session directly 4 pi epsilon naught into r. So 4 pi epsilon r कितना रखना है 12. तो यहाँ पे r is equal 12 into 10 raised to minus 2 मीटर रख दो, और इसमें वैल्यू रख के आप फाइंड करो. So this one is in a homework, ठीक है. सभी वैल्यू जो है और रख के इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो, होमवर्क. और इसमें एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई लेटर इज मच स्मॉलर. मतलब यहाँ पे इसका आंसर होने चाहिए तो ये आपको पता चलेगा कि लार्जर और स्मॉलर कैसे. देखो यहाँ पे सभी के आंसर में लिख देता हूँ. तो फर्स्ट का इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना फर्स्ट, ठीक है. उसके बाद आप आंसर देखना है. तो इसका आंसर आएगा 5.5 इंटू 10 raised to minus 9, और इसका आंसर आता है 1.3 इंटू 10 raised to minus 11. इसको आप सी डैश बोल दो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप सी डैश बोल दो. तो दोनों में से देखो ज्यादा कौन है, ये है 9 10 raised to minus 9, वो है 10 raised to minus 11. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो सी ग्रेटर देन सी डैश. हियर सी इज ग्रेटर देन सी डैश. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट यूज किया हुआ है. यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट मतलब डायरेक्ट सब्सटेंस यूज किया हुआ. और सेकेंड, यहाँ पे आपने पोटेंशियल को डिक्रीज किया, तो आप और भी मतलब एडिशनल चार्ज वहां पे ऐड कर सकते हो.
यहाँ पे आपने ब्रेकडाउन पोटेंशियल को मतलब आपके पोटेंशियल को डिक्रीज किया, मतलब मीडियम का ब्रेकडाउन पोटेंशियल इंक्रीज है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर आप मीडियम ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उस यहाँ पे कंपेयर करते हो और यहाँ पे कंपेयर करते हो, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उससे इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे सेम रहा। अगर आपने सेम चार्ज वहाँ पे प्लेस किया है तो, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक कॉन्स्टेंट भी यूज किया है, वहाँ पे कुछ नहीं यूज किया, तो इससे भी आपका भी चेंज हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट एक कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है 32। सो दैट इज द रीजन व्हाई द C इज ग्रेटर देन C डैश। ओके, सो इन द फर्स्ट वन, in first case dielectric substance is used। ओके, फर्स्ट केस में डायरेक्ट सब्सटेंस यूज किया है तो उससे भी उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, एज वी स्टडी इन द प्रीवियस सेशन, दस वॉट एवर द सब्सटेंस यूज हियर, वॉट एवर द मीडियम, whatever the medium surrounding medium is, whatever the insulating medium is present, thus capacitance is storage capacity of a capacitor is depends on this one। so यहाँ पे वो डायरेक्ट सब्सटेंस जो भी यूज किया उससे उसका कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, so in the first case डायरेक्ट सब्सटेंस is used and potential difference is decreases, ठीक है, तो आपने दोनों ही यूज किया, पोटेंशियल डायरेक्ट सब्सटेंस भी यूज किया और आपने पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिक्रीज किया, इससे इसका कैपेसिटेंस जो है और इससे मच मोर हायर देन द लेटर केस। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ हायर। सो पूरा एग्जांपल अच्छी तरह से आपकी बुक्स में नोट कर लो। Okay, guys, comes to the next example. Example number 2.32 from the textbook exercise, and this is from additional exercise. So here you prepare this example only for the competitive exams. Okay, not for the board examination. Now, what is this problem statement? A cylindrical capacitor has a coaxial cylinder of a length 15 centimeter. Let's write down the data. So length is equal to 15 centimeter. Convert in a meter. So 15 into 10 raised to minus 2 meter. Second one, so 2.32, radius 1.5 centimeter and 1.4 centimeter. So मान लो कि R2 is equal to 1.5 into centimeter को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 raised to minus 2. R1 is equal to 1.4 into 10 raised to minus 2 meter. Miss, I'm just write down all this data in SI units. The outer cylinder is earth and the inner cylinder given us some charge 3.5 microcoulomb. So inner cylinder को आपने 3.5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया और आउटर सिलेंडर को अर्थ किया। मतलब जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था, मतलब फर्स्ट सेशन में देखा था, ऐसा कोई सिलेंडर है, ओके, और सेकेंड सिलेंडर आप मान लो कि कोई ऐसा है इस तरह से। सो आउटर को आपने क्या किया, अर्थ किया, इनर को आपने सपोज प्लस क्यू चार्ज दिया, तो फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। सो दिस इज अवर सी थ्योरी। Okay, and the capacitance of this cylindrical capacitor is given by this equation. C is equal to 2 pi epsilon L upon Ln R2 upon R1, where R2 is a larger radius, R1 is a smaller radius, as we know. Okay, and we know this relation. So everything is given to us. Now this type of data are given to us, and what we have to find, determine the capacitance of the system. So आपको capacitance find करना है, second find करना है आपको एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल कितना होगा इनर सिलेंडर का। तो इसको आपने ग्राउंड किया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, और इसका पोटेंशियल V है, तो आपको फाइंड करना है कि V कितना होगा। ओके, सो सेकेंड फाइंड करना है V इज इक्वल टू व्हाट, ग्राउंड किया इसलिए एक का तो आपने 0 ले लिया, तो ये एक साइड जो है प्लस क्यू चार्ज है, ऑन द इनर सिलेंडर एवरीवेयर दैट इज अ प्लस क्यू चार्ज। Okay, and the outer cylinder everywhere that is a minus Q charge. So the cylinder is capacitor is formed,
and whatever the capacitance is from here, its capacitance is given by this equation. So you just see in this equation, if first one if we have to solve, C is equal to what, then C is equal to, you write this answer 2 pi epsilon naught, everything is given here except this how to find this ln. So you have a log table to find this, but if you use the log table, here the ln is used, so ln is converted into log first. तो आप इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखो 2 pi epsilon naught L upon 2.303 log R2 upon R1. तो सेम इक्वेशन है, लेकिन अभी आपको ये इक्वेशन यूज करके लॉग टेबल में अगर आप ln की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो ln को log में कन्वर्ट करो, ln की जगह पे रखो 2.303 log R2 upon R1. So put the all value and find this answer. So remaining calculation is in homework. ठीक है, तो कैपेसिटेंस मिल गया, चार्ज आपको गिवन है, तो V का इक्वेशन डायरेक्ट यूज करो. पोटेंशियल डिफरेंस, आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल दोनों सेम रहेगी. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, V0 है, यहाँ पे V है, तो आप यूज कर सकते हो. तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, सो V इज इक्वल टू Q बाई सी. C ऑलरेडी नॉन है, यहाँ पे रख दो, Q नॉन है, यहाँ पे रख दो. ये माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दो, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये वैल्यू यहाँ पे रखो और जो भी आंसर है आपका मिल जाए. ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन आप होमवर्क में कर लेना. तो इस तरह से आप पूरा प्रॉब्लम को नोट कर सकते हो, लेकिन आपको इक्वेशन याद होना चाहिए. C इज इक्वल टू 2 pi epsilon naught L अपॉन ln R2 अपॉन R1. अगर इक्वेशन नहीं आता है तो आप ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते. दैट इज अ प्योरली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. ओके, नोट करो इक्वेशन एग्जांपल को. Okay guys, comes to this next example. Example number 2.33 from the textbook exercise. What is the problem? And it is also from additional exercise. So this one is prepared only for the competitive exam, not for the board theory. Okay. Now a parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating of 1 kilovolt. मतलब कि आप ऐसा parallel plate capacitor रखो. ओके, यहाँ पे आपने अगर V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है ऐसे V, तो इस V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 किलोवोल्ट. सो 1 किलोवोल्ट मतलब कि 10⁻³ वोल्ट. इससे ज़्यादा इसका वोल्टेज नहीं होना चाहिए. इट्स अदरवाइज कैपेसिटर इज फ्यूज्ड. ओके, ये इतने वोल्ट तक ही मतलब आपको इतने वोल्ट कैपेसिटर को सप्लाई करने हैं. दैट्स कॉल्ड रेटिंग. ओके, वी एज वी नो. यूजिंग द मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. मतलब अगर यहाँ पे आपने कोई मटेरियल रखा है ऐसे, आपने पूरी स्पेस जो है ऐसे कोई सब्सटेंस से फिल कर दी, तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3. इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है 3. और इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी गिवन है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंस हियर 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. 10⁻⁷ volt per meter. This much of high electric field is means if this capacitor electric field is greater than this Emax, then the breakdown is occurs. If it is less than, breakdown is not possible. Okay, now for the safety purpose we should like this field never exceeds the 10% ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेंथ. मतलब कि यहाँ कैपेसिटर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है, अब मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज गिवन है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज गिवन है बैटरी से. ओके, तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लो कितना प्रोड्यूस हो रहा है E, तो ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ दिस मैक्सिमम फॉर सेफ्टी. क्योंकि अगर ए जो है इससे ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो ब्रेकडाउन ना हो इसलिए क्या करते हैं, ई की वैल्यू इसका 10% ही रखते हैं. सो ये जो ई प्रेजेंट है वो क्या है 10% ऑफ मैक्सिमम फील्ड. तो फिर यहाँ पे आप लिख दो, चलो E इज इक्वल टू 10% मीन्स 10/100 और ई मैक्स कितना है 10⁻⁷. तो कितना हो गया 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल. सो मतलब E जो है वो 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस रीजन में कैपेसिटर के रीजन में प्रेजेंट है, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, ऐसा केस है. नाउ व्हाट इज दिस मिनिमम एरिया शुड बी रिक्वायर्ड सो दिस कैपेसिटेंस इज बिकम्स 50 पाइकोफैराड. मगर मतलब इस केस में अगर आपको कैपेसिटेंस जो है और 50 पाइकोफैराड चाहिए, 50 पाइकोफैराड मतलब कि 50 इंटू 10⁻⁻12 फैराड चाहिए, तो फिर ये प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए आपका क्वेश्चन से. व्हाट इज द मिनिमम एरिया, आप मान लो कि इसका एरिया कितना है
ए है तो ए फाइंड करना है। सो क्वेश्चंस काफी डिफरेंट लगता है, मतलब पहले तो आपका सी गिवन है तो सी के इक्वेशन से चलते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर ए रखा तो आपका आंसर हुआ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रेजेंट है, तो सी का आंसर रखना है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वेयर के इज व्हाट 3, इट इज गिवन हियर। सो आपको एरिया फाइंड करना है, इसमें से एरिया फाइंड करो। चलो, तो एरिया इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो सी नॉन है, डी अननोन है, तो पहले आपको इसमें डी फाइंड करना होगा, ठीक है। के नॉन है, एप्सिलॉन तो नॉन ही है ऑलवेज, एप्सिलॉन क्या होगा ऑलवेज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा है। मतलब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, आप किसी भी तरह डी लेके आओ। तो पहले ई गिवन है और वी गिवन है, तो ई और वी का रिलेशन डी के फॉर्म में लिखो। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू ED, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो D इसमें से फाइंड करो, तो D इज इक्वल टू V अपॉन E, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन को यहाँ पे रख दो तो एरिया मिल जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू C अपॉन K इंटू एप्सिलॉन, डी की जगह पे रख दो V अपॉन ए। नाउ C नॉन, K नॉन, एप्सिलॉन नॉट नॉन है, V भी गिवन है 10⁻3, E भी गिवन है 10⁻6। तो सभी वैल्यू यहाँ पे रखो और आपका जो आंसर है मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। सो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क। तो काफी डिफरेंट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे अब तक इक्वेशन का यूज कर रहे थे, लेकिन अभी इक्वेशन में कोई एक डेटा अननोन है जिसको आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दो और आपकी बुक्स में पूरा प्रॉब्लम जो है नोट्स कर लो, ठीक है। Okay, guys, let me solve some example which is based on a capacitor and capacitance. Example number, practice example number 1, additional. Okay. Now, what is this problem statement? The plates of a parallel plate capacitor are made of a circular disc of radius 5 cm each. तो पैरेलल प्लेट जो फॉर्म किया है उसकी रेडियस कितनी है, 5 × 10⁻² मीटर। मीन्स दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, कंसिडर दिस इज द फर्स्ट प्लेट। ओके, तो मतलब सर्कुलर प्लेट्स आर यूज टू फॉर्मिंग अ कैपेसिटर। इट इज अ फर्स्ट प्लेट, it is a second plate, so both plates are placed like this. Okay, and this radius of this both this plate is 5 cm as given data. Now if the distance between these two plates is 1 mm, so if the D is equal to 1 mm, convert in a meter, so 1 × 10⁻³ meter, so this distance is D which is given to us. Then what is the capacitance of this one? So आपको फाइंड क्या करना है, what is this capacitance? So again use this parallel plate capacitor. So capacitance C is equal to ε0 A upon D. बट यहाँ पे A नहीं है, R है, सर्कुलर प्लेट से उसका एरिया लिख लो यहाँ पे। So A into πr² upon D. All those values are known right now. Put the value and find the answer. Okay, so remaining calculation is in homework. अब जैसे ही उसके कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा, 6.95 × 10⁻11 फैराडे। आप इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो पूरा एग्जाम्पल आपकी बुक्स में प्रैक्टिस एग्जाम्पल में नोट कर लो। Now comes to this next example, example number 2. A parallel plate capacitor having an area 25 centimeter square. So write down this given data. Area is equal to 25 centimeter square को meter square में convert करो. So 10⁻⁻4 meter square. And the distance between this plate is 1 mm. So D is equal to 1 mm को meter में convert करो.
so 10 raised to minus 3 meter, and this capacitor is joined to the battery having a voltage 6 volt, so V is equal to 6 volt. Calculate the Q and the work done by battery. So आपको find करना है Q is equal to work and work done by battery is equal to, so you have to find this two data. So जो भी डेटा है उसमें से आप A गिवन है, D गिवन है और Q फाइंड करना है. सो Q इज इक्वल टू होता है CV. सो पहले तो आप यूज करो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसमें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ओके, उसके बाद Q में यूज करो. सो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV. सो V गिवन है, C A इक्वेशन रख दो, तो Q इज इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू V. सो एप्सिलॉन नॉट A D एवरीथिंग इज गिवन टू यू, देन पुट द वैल्यू हियर, यू गेट दिस आंसर. सो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क. ठीक है, सभी वैल्यू यहाँ पे रख देना. तो आपका आंसर जो है Q का वो आ जाएगा 1.33 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 कूलम. तो इसका आंसर जो है आ जाएगा 1.33 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 कूलम. 10 कूलम, दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी. यहाँ पे स्पेशली आपको गिवन है वर्क डन बाय बैटरी, नॉट द वर्क डन टू प्लेस अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ओके, सो अगर वर्क डन बाय बैटरी है तो इसके इक्वेशन को आपको लिखना है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू CV स्क्वायर भी लिख सकते हो, Q स्क्वायर बाय C भी लिख सकते हो, V इंटू Q भी लिख सकते हो. तो काफ़ी सारे इक्वेशन है. तो सभी अभी तो C भी नॉन है, Q भी नॉन है, लेकिन यहाँ पे Q भी आपने फाइंड किया है, V गिवन है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन यूज करो Q भी, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. अदरवाइज CV स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो CPI वैल्यू यहाँ पे रखने होगी. ठीक है, तो जो गिवन डेटा है उससे A सबसे बेटर मेथड है. 3 ही इक्वेशन है, तो 3 में से कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन आप यूज करो. ठीक है, तो इसका वैल्यू सब भी रखोगे तो आप इसका आंसर आपको मिलेगा 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 जूल. सो 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 जूल, इतना आंसर आपको आएगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है वो होमवर्क में कर लेना. तो ये भी कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है जो हमने कंसेप्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हुए उसके ऊपर है. ठीक है, तो एग्जाम्पल नोट कर लो. चलो, okay guys, let me solve one example, practice example, which is based on again capacitor. Okay, and this example is quite different. What is the problem? If the switch is close to the points P, मतलब यहाँ पे स्विच है, यहाँ से आपको यहाँ पे क्लोज करनी. Okay, if the switch is close to the point P, then find the heat is produced during this process. आपको find करना heat is produced during this process only. मतलब प्रोसेस से पहले स्विच यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लोज की. तो हीट का जनरल फॉर्मूला क्या है, एज वी नो the heat is generally given by work done by battery minus change in potential energy of the capacitor system. Total work done by battery, whatever this battery is given to us, 1 or 2 whatever. Okay, and total change in potential energy of the capacitor system. तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल आपको दोनों ही काउंट करनी होगी. तो आप इनिशियल और फाइनल सिस्टम में केस ले लो. चलो, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इनिशियल condition and here we discuss about the final condition. अब दोनों ही कंडीशन को सेपरेटली डिस्कस करो, उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना. ठीक है, सो इनिशियल कंडीशन में सर्किट इतनी होगी, इतनी, तो आप इतनी ड्रॉ करो. चलो, सो दिस इनिशियली दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी हैविंग अ वोल्टेज 10 volt. Okay, or a capacitor at 2 microfarad. If you just closing the switch here, then this battery is again, this 2 volt battery is connected to the circuit. So the second capacitor, second case, this capacitor is connected to the 2 battery 10 volt as well as 2 volt. So this is 2 microfarad and here it is 10 volt, here it is a 2 volt, but this both are now in a connection after closing the switch to the P, after closing the switch to the P. So the total potential of this battery is 8 volt. इसका टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 8 volt. What is the meaning of this? This circuit now finally equivalent to this. Here it is 8 volt and that is 2 microfarad. Okay, how much initially the charge present on the capacitor? So initial condition में आप मान लो Q initial है, तो यहाँ पे प्लस Q initial होगा, यहाँ पे माइनस Q initial होगा.
फाइनल कंडीशन में यहाँ पे मान लो प्लस क्यू फाइनल है, तो यहाँ पे माइनस क्यू फाइनल। सो क्यू इनिशियल कितना होगा, सी इंटू वी, सी इंटू दिस वी। ओके, सो सी कितना है 2 माइक्रोफेराड है, वी कितना है 10 वोल्ट, तो टोटल कितना 20 माइक्रोकूलम हो गया। क्यू फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो इसका C और इसका V अभी 8 है, ठीक है, सो 2 इंटू 8, सो 2 माइक्रोफेराड इंटू 8 वोल्ट, ये हो गया 16 माइक्रोकूलम। ओके, इनिशियल एनर्जी कितनी थी वो फाइंड कर लो यहाँ पे, हाउ मच इनिशियल एनर्जी प्रेजेंट हियर, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर 1/2 CV², इसमें CV ये लेना है, ठीक है, तो आंसर होगा 1/2, C कितना है 2 माइक्रोफेराड है और V कितना है 10 वोल्ट का स्क्वायर, सो 2 कैंसल, 10 स्क्वायर 100, so CU initial is equal to 100 and micro is present, so this answer is in microjoule. So this 100 microjoule energy this capacitor have initially. Now what is the final energy, so U final is equal to again 1/2 CV², but C और V ये लेना है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1/2, C कितना है 2 माइक्रोफेराड है, V कितना है 8 वोल्ट, सो 2 कैंसिल है गए, सो 8 स्क्वायर 64, तो U फाइनल हो गया 64 और माइक्रो है तो फिर माइक्रोजूल। सो दिस इज फाइनल एनर्जी, दिस इज इनिशियल एनर्जी। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस whatever happened this before and after we are not discuss about this, we only discuss the case when the switch is transferred to the P. So during the process how much energy of this capacitor is changed, it is becomes 100 to 64, so change in potential energy, change in potential energy of capacitor during switching process is given by delta U is equal to U final माइनस U इनिशियल, वैल्यू रखो, चलो U फाइनल कितनी है 64 माइनस U इनिशियल कितनी है 100, तो 64 माइनस 100 करो, 100 माइनस 60 करो पहले, 40 माइनस 4 करो 36, तो आंसर आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस 36 माइक्रोजूल। सो दिस मच ऑफ एनर्जी इज चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, नाउ व्हाट इज सो डेल्टा U नॉन, नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, तो पहले कितना यहाँ पे चार्ज था Q इनिशियल, बाद में कितना हो गया Q फाइनल, तो वर्क डन बाय बैटरी मतलब बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, इसमें से बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा डेल्टा Q जितना, तो वर्क डन बाय बैटरी का इक्वेशन क्या है, वर्क डन बाय बैटरी WB is equal to charge flow through the battery into potential of a battery, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी एंड इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, कितना चार्ज फ्लो हुआ यहां से Q फाइनल माइनस Q इनिशियल फ्लो हुआ, ओके, पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट है ना, ए नहीं लेना, यहाँ पे स्विच एक क्लोज करने बाद टोटल पोटेंशियल 8 वोल्ट हो जाता है, तो आपको फाइनल पोटेंशियल 8 लेना है, सो दैट इज 8, और यहाँ पे Q फाइनल Q इनिशियल कितना है 16 माइनस 20, तो ये हो गया 16 माइनस 20 इंटू 8, तो वर्क डन बाय बैटरी का आंसर है 60 माइनस 20 करो -4 इंटू 8 -16, और आंसर माइक्रो में है तो यहाँ पे भी आएगा माइक्रोजूल। ओके, सॉरी 8 इंटू 4 32 होगा ना, 8 इंटू 4 32, माई मिस्टेक, सो दिस इज 32 माइक्रोजूल। ओके, नाउ व्हाट इज हीट प्रोड्यूस, सो हीट प्रोड्यूस H is equal to, use this equation, work done by battery minus delta U, work done by battery कितना मिला -32, A माइनस डेल्टा U कितना मिला -36, तो सभी वैल्यू को रखो और फाइनल सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, so 36 minus 32, so 4 microjoules, means this much of heat is produced during the switching process, this much heat is produced during the switching process. Now this is our answer. Okay, now we write the one additional notes here. What is this additional notes? Here this question is asking to us, the charge is flow to the battery or charge is flow from the battery, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, so let's we write charge is flow to the battery or charge is flow फ्रॉम द बैटरी, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। चलो
कहाँ पे चार्ज फ्लो होगा, बैटरी में चार्ज फ्लो होगा या बैटरी से चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे कितना इनिशियल चार्ज था, यहाँ पे 20 था, उसमें से कितना हो गया 16 हो गया। मतलब कैपेसिटर की अगर आप बात कर रहे हो तो फिर चार्ज इज चेंज फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम टू 16 microcoulomb. Here charge is decreased on the capacitor. इसमें some charge is leaving from the capacitor. कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ मतलब सम चार्ज इज लीव फ्रॉम द कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो यहाँ से लीव होना चाहिए। मान लो कि ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये लीव हुआ होगा। तो यहाँ पे 20 था, प्लस में से कुछ लीव हुआ 4 माइक्रोकूलम जितना, तो 16 हो सकता है। So this charge is entered to the battery. See, if the charge is leaving from the capacitor, then it is entered to the battery. Then we can write this answer. Thus delta Q is equal to 4 microcoulomb charge is flow to the battery. Flow to the battery. आपका आंसर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, here doesn't mean if you connect the battery means charge is always flow from the batteries, means this type condition is given to you. Here net potential, see initial potential 10 volt था, final potential 8 volt हुआ, thus potential of this battery is decreases. It means thus initial potential of the capacitor higher, final potential of the capacitor is lower. It means some charge is leave from the capacitor. So this much of charge is entered to the battery. This condition is exactly like a charging of a battery. If charge is entered to the positive terminal of a battery, then it is called a charging. If it is leave from a positive terminal, that is called a discharging. Okay, so this condition is exactly similar as the charging of a battery. तो यहाँ पे अगर 2 वोल्ट की बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते तो फिर यहाँ पे 10 + 2 12 हो जाता, तो फिर चार्ज और कैपेसिटर में एंटर होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 12 हुआ होता तो। ओके, लेकिन अगर इस तरह का कोई कंडीशन है तो ऐसा भी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। और यहाँ पे अगर आपने देखा, देखो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हुआ, क्यों? ओके, यहाँ पे आपने लिखा वर्क डन बाय बैटरी। अगर बैटरी चार्ज फ्लो कर रही है, ओके, और चार्ज इज फ्लो फ्रॉम द बैटरी, तो उसका मीनिंग हुआ वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे चार्ज बैटरी में एंटर हो तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव है। देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस है वर्क डन बाय बैटरी। सो अगर बैटरी ने वर्क किया तो पॉजिटिव है, बैटरी पर वर्क हुआ तो नेगेटिव हुआ। इफ द वर्क डन ऑन द बैटरी देन इट इज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। राइट नाउ योर आंसर इज नेगेटिव, इट्स वर्क डन ऑन द बैटरी, इट मींस चार्ज इज फ्लो टू द बैटरी। अगर फ्रॉम द बैटरी हुआ होता तो ये जो वर्क डन बाय बैटरी है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी आपको याद रखना है और आपको वो मार्जिन में एक कंसेप्ट भी लिखना है कि किस तरह से इसका आंसर आता है। ठीक है, तो पूरा एग्जाम्पल आपकी बुक्स में अच्छी तरह से नोट्स कर लो।